All right, we all know y minus y0 equal to m times x minus x0. Why? Well, we know this as a, we know specifically this equation as a point slope form of line, and I can say that it is a equation of line. So ये जो मेरे को point slope form of line देता है, actually this is nothing but the equation of line which has a slope m. It has a slope which is nothing but my m over here. So इसलिए इसको बोला जाता है point slope form of a line. Also there is another form of equation of line having the slope m, and that is y equal to mx plus b, in which my slope is again m, and it has some extra element in it जो कि है मेरा यहाँ पे b. So ये जो m और b है, this m and b, what do they form? They form as nothing but slope intercept form of line, slope intercept form of line, or slope intercept form of line. All right, ये भी एक equation of line है. Again this is a linear equation. We all know it's a linear equation because the highest power that a variable has is 1 itself. Linear equation है ये, हमें पता है कि these are equations, but what makes it linear function? Well, we have to understand what linear functions are. हमको ये समझना है कि linear functions क्या है, और ये तो लीनियर इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस है और ये फंक्शंस है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन. ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, दे डू नॉट फॉर्म लीनियर फंक्शन बिकॉज जब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली ये स्लोप की, दोनों में जब मैं बात करता हूँ स्लोप की, तो आई हैव वन थिंग दैट आई हैव नोटिस दैट द स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड अनडिफाइंड. It can be either of them. So if the slope is positive, I get the equation of line, I get the line in such a way that it's an increasing order. It's in an increasing order. मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ, it's better. Yeah, it's in an increasing order में हो रहेगा, and it has to be increasing order क्योंकि slope describes the steepness of the line. Similarly, when I speak about negative slope, it has to be in decreasing order, and it has to be because वो steepness define करना है, and plus आपकी जो slope है वो कैसी चेंज हो रही है. स्लोप इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज. एग्जैक्टली अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है, सो इफ आई वांट टू राइट ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इट इज नथिंग बट माय फॉर्मूला फॉर ये बहुत ज़्यादा बोल हो गया. हाँ, फॉर्मूला फॉर स्लोप इज y माइनस y, it's y minus y0 divided by x minus x0. This is the formula for slope, which is to say that this y minus y0 is nothing but my change in y values, and x minus x0 is nothing but my change in x values. So when my change is such a way that कि वो negative outputs देना लगेगा मुझे, then I can say that the slope is negative. When the slope is zero, then I get a horizontal line, and which is to say that हम यहाँ पे एक conclusion बना सकते हैं that this line over here is nothing but my y-intercept. It is nothing but my ये जो point है, this is nothing but my y-intercept. यहाँ पे when you get the slope equal to 0, you get this point if it's too light. All right, 0, b. When आपका slope यहाँ पे 0 हो जाएगा, so you get only b, and that is why this is named as slope intercept form, because if you have a slope equal to 0, you get y-intercept. Intercept as in इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी पॉइंट पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हो, कौन सी भी कोऑर्डिनेट रहने दो, ये y एक्सिस है और x एक्सिस भी होगा. और जब आपका कभी इफ इन केस आपका यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है स्लोप, अनडिफाइंड स्लोप हो जाता है, सो इन सच केस यू गेट ए वर्टिकल लाइन, सो यहाँ पे आपके पास में टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आ जाती है, जिसपे से यू डिफाइन दैट व्हाट लाइंस आर एंड उनकी इक्वेशन कैसी होंगी. सो what is the difference or what makes them out of this a linear function. यहाँ पे मेरे पास में देखा जाए तो मेरे पास में ये एक इक्वेशन है लाइन का और ये एक इक्वेशन है लाइन का.
ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस टू, बिकॉज यहाँ पे मेरा स्लोप जीरो हो जाने की वजह से ये मेरे को एक कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है। एज यू कैन सी, आप कोई भी इनपुट डालो x के लिए, आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे तो इनपुट ही एक कॉमन है, सो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ये वाले पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो different वैल्यूज ऑफ x, you get only one output, and that is to say that it is a constant function. Well, अगर मैं स्लोप्स सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करूं, अगर मैं ये जो मेरा स्लोप है m, ये m सिर्फ मेरा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा, और उन कलेक्शंस, इन ऐसे कलेक्शंस इक्वेशंस का जिनके स्लोप्स सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, दोज इक्वेशंस फॉर्म लीनियर फंक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में से ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें से मैं ऐसे इक्वेशंस पिक करूंगा सिर्फ जिनके स्लोप्स पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे सिर्फ, एंड दोज इक्वेशंस ऑफ लाइंस, दोज इक्वेशंस विल फॉर्म ए लीनियर फंक्शन। सो इन जनरल जो लिखा जाता है लीनियर फंक्शन को, इन जनरल जो लिखा जाता है, दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू m x प्लस b, कॉमा एक कंडीशन आ जाती है दैट m इज नॉट इक्वल टू 0। दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, सो दैट आप जब यहाँ पे लीनियर फंक्शन की बात करते हो तो आपका ये स्लोप कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और अनडिफाइंड भी नहीं हो सकता है। वेल, अनडिफाइंड अगर हो गया तो इट विल नॉट बी ए फंक्शन एवर, सो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो, और अगर आपका जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो ये लीनियर फंक्शन रहेगा ही नहीं। सो जिनके स्लोप्स एग्जिस्ट करते हैं और वो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तब मेरे को मिलता है लीनियर फंक्शन। ऐसे इक्वेशंस ऑफ लाइन का मैं उन इक्वेशंस ऑफ लाइन को मैं बोल सकता हूँ लीनियर फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो होगी वेरिएबल की 1, एंड यहाँ पे आपका m और b बट ऑब्वियसली रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। सेकेंडली जब मैं बात करता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें आपको एक बात तो ये सीधी बात पता चलती है भाई कि देखो, ये जो भी रहेगा इसका सॉल्यूशन, इसका जो रूट रहेगा वो ओनली एंड ओनली 1 रहेगा। सो लीनियर इक्वेशंस या लीनियर फंक्शंस, लीनियर इक्वेशंस में हमेशा रूट एक ही होता है, तो हम इसलिए भी बोलते हैं कि यस इट इज ए लीनियर इक्वेशन, एंड दैट इज व्हाई लीनियर फंक्शन को फंक्शंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका स्पेसिफिकली स्लोप के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि दिस पार्ट हैज टू बी इक्वल टू सम वैल्यू दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल as negative, but it cannot be equal to 0, and that is what linear function is। y equal to mx plus b has the, और distinguish कैसे होता है कि ये linear function है? well, it has a variable जिसका highest degree जो रहेगा, highest power जो रहेगा वो 1 रहेगा, एंड सेकेंडली इसका जो ग्राफ रहेगा एक लीनियर, एक लाइन रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन डायगोनली फॉर्म में रहेगा, कभी भी एकदम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं आएगा, क्योंकि देन इट माइट चेंज हिमसेल्फ, वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा फिर। अगर वो डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन फॉर्म करता है तो वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। ऑलराइट, एंड ये सिनेरियो यहाँ पे अपना ये लीनियर फंक्शन की मैं बात करता हूँ, तो मैं अगर बोलूँ कि लेट्स से 2x plus y equal to 3, is this my linear function? Then you can say without any hassle that it is a linear function, क्योंकि this is nothing but in this way, and yes मेरा स्लोप निगेटिव रहा तो चलेगा। यहाँ पे योर स्लोप इज -2, यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो -2 है और आपका जो y इंटरसेप्ट है वो 3 है, बट द थिंग इज दैट कि क्या ये लीनियर फंक्शन है क्या? यस, ये लीनियर फंक्शन है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू y, is this a linear function? Then you can with full confidence say that no, it is not a linear function, because यहाँ पे पावर देखो ना, पावर x to the power 1/2, x to the power 1/2 is not equal to x to the power 1, so इसका मतलब क्या हो गया? ये linear function नहीं हुआ। And you have to remember that linear function is nothing but a polynomial of degree 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, हम उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो पता हो तो बहुत बढ़िया, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर फंक्शन। हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि लीनियर फंक्शन ये होता है कि y इक्वल टू mx प्लस b, बट एक्चुअल में लीनियर फंक्शन इज, उसका ओरिजिन कहाँ से आया? what makes it as a linear function is that आपको स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म पता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका जो स्लोप है ये स्लोप आपका पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है और अनडिफाइंड भी रह सकता है। बट अगर मैं इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से ऐसे स्लोप्स ले लूं जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे तो वो जो इक्वेशंस होंगी टुगेदर, उनकी फैमिली, वो जो इक्वेशंस होंगी टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू फैमिली, दैट फैमिली इज नोन एज लीनियर फंक्शन, and they are very much similar to the slope intercept form, except slope intercept form में आपके पास में additionally जीरो और undefined होते हैं स्लोप, यहाँ पे आपके पास में जीरो और undefined स्लोप नहीं होंगे लीनियर फंक्शन में। so there is a distinction between linear function and slope intercept form of line, slope intercept form of line। यहाँ पे एक स्लाइड डिफरेंस ये होता है, एंड दिस इज नथिंग बट लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये बहुत आसान सी चीज है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आ कहाँ से रहा है और कैसे हो रहा है, लीनियर फंक्शन क्यों है, और ये इस वजह से है।